Good morning, students. We have completed reading of 3 chapters. So today we are going to read chapter number 4. Chapter name is The Luncheon. So क्या बोला है? The Luncheon. The luncheon का meaning है. Meanings are given below. Luncheon a formal lunch. ठीक है, luncheon हम इसको बोलेंगे formal lunch. Which cuisine do you enjoy the most and why? आप कौन which type of cooking do you enjoy the most? आपको कैसे cooking, कौन सी cooking पसंद है और क्यों पसंद है? Where do you eat it most frequently? आप कहाँ पे जो आपको आपकी favorite dish है या favorite cooking है, आप कहाँ पे उसे खा रहे हो? At home or at your restaurant, at a friends or the relatives home, चाहे वो आपका घर हो, बेशक वो आप कोई रेस्टोरेंट हो, कोई फ्रेंड्स और कोई रिलेटिव्स का घर हो. रीड अबाउट लंच. अब हम इस पोएम में लंच के बारे में पढ़ेंगे. दैट वाज नॉट एंजॉयबल फॉर द राइटर. लेकिन जो इस पोएम की जो इस चैप्टर के राइटर हैं, बट फॉर द राइटर इट वाज नॉट एंजॉयबल. वो राइटर के लिए एंजॉयबल लंच नहीं था. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड सम लाइंस अबाउट द राइटर. राइटर के बारे में पढ़ते हैं कुछ लाइंस. Let's read about the Samrest Mogum. Samrest Mogum is a writer who has written this chapter. He was an English playwright. वो playwright थे, novelist थे. He also wrote novels. He also wrote plays and short stories. His most well-known work is the उनका जो सबसे अच्छा वेल नोन वर्क कौन सा था, इसके रिगार्डिंग था ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज. जो ह्यूमन बॉन्डेज के बारे में था. He was highly popular in his time. वो अपने टाइम में बहुत फेमस थे. And became very rich by writing. And he became rich writing. Writing की वजह से वो बहुत rich बन गए थे. Now move to a chapter. I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. राइटर ने हमें क्या बताया कि मैंने उसको, उस गर्ल को, हर है ना, उसको प्ले में देखा, मूवी थिएटर में देखा. इन आंसर टू हर ब्योकनिक, और वो जो वो उनकी तरफ देख रही थी. आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल. इंटरवल में वो उसके पास गए. एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और उसके पास बैठ गए. हमें कुछ नहीं पता कि वो लड़की कौन है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया. हमें सिर्फ राइटर ने स्टार्टिंग में यही बताया that there was a girl who was sitting in the theater and she was looking at the writer, and the writer went to her and sat beside her, और उसके साथ जाकर बैठ गई. It was long since I had last seen her. If someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. राइटर ने हमें क्या बताया कि उसे देखे, मैंने उसे लास्ट टाइम देखे हुए बहुत टाइम हो चुका था. अगर मुझे कोई उसका नाम भी ना बताता, if somebody had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. अगर कोई नाम भी ना बताए तो भी मैं उन्हें पहचान लेता. Because she addressed me brightly. उन्होंने मुझे अच्छे से एड्रेस किया है, अच्छे से हमारी गेट टुगेदर हुई थी, हम अच्छे से एक दूसरे को जान रहे हैं. Well, it is many years since we have met. बहुत साल पहले हम मिले थे. सेकेंड टाइम मैंने उन्हें कहाँ देखा था? थिएटर में देखा था. How time does fly. टाइम कैसे निकल गया? I don't know. We are none of us getting any younger. We are no longer younger. अब हम young भी नहीं रहे थे. We became old. Do you remember the first time I saw you? तो उस गर्ल ने राइटर से क्या पूछा कि आपको याद है मैंने आपको फर्स्ट टाइम कब देखा था? You asked me to luncheon. Did I remember? तो राइटर ने क्या आंसर किया कि आपने मुझे लंच के लिए बुलाया था. Did I remember? अगर मुझे याद है. It was 20 years ago. 20 years पहले वो मिले थे. 20 years के बाद राइटर उस गर्ल को कहाँ मिल रहे हैं, उस लेडी को कहाँ मिल रहे हैं? 20 years के बाद थिएटर में. I was living in Paris. तो अब हमें राइटर उस गर्ल के बारे में बता रहे हैं
to whom he met in the theater. When he was living in Paris, he met to that girl. I had a teeny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery. Cemetery होता है a place where dead people are buried. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा एक अपार्टमेंट था जहाँ पे मैं रह रहा था और ओवरलुकिंग वो किसकी थोड़ा सा एक cemetery की तरह लग रहा था. I was earning barely enough to keep body and soul together. मैं इतना कमा लेता था कि हाँ अगर मेरी बॉडी और सोल जो थी वो दोनों एक साथ चल पड़ी. She had read a book. उन्होंने एक बुक लिखी थी of mine. उन्होंने एक बुक पढ़ी थी मेरे बारे में and had written to me about it. और उस बुक के बारे में मेरे को कुछ लिखा था. I answered. और मैंने उस गर्ल का जवाब दिया. कौन थी वो गर्ल जो उन्हें उस थिएटर में मिली? Thanking her. मैंने उनका थैंक यू किया. And presently I received from her letter saying she was passing through Paris. फिर मुझे उनका लेटर मिला कि वो पास पेरिस में कहीं आ रही है एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी. उन्हें अच्छा लगेगा अगर हमारी थोड़ी सी मीटिंग हो जाए, बट हर टाइम वाज लिमिटेड, सो एंड शी डिडंट हैव इनफ टाइम. द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वाज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे. वो फ्री मोमेंट आ गया था, वो थर्सडे था. शी वाज स्पेंडिंग मॉर्निंग इन द लग्जमबर्ग, जिस सिटी का नाम है, वो वहां पे आई. एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट द फोयर्ट्स आफ्टरवर्ड्स. फोयर्ट्स आफ्टरवर्ड्स रेस्टोरेंट का नाम है जहां पर बैठ के उन्होंने लंच करना था. ठीक है, ये बात हमें राइटर अपने पास्ट की बात बता रहे हैं, लेकिन आज तो वो उस लेडी के साथ थिएटर में बैठे हैं. फोयट इज अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेनेटर्स ईट. वो एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिसमें अमीर लोग आते थे, पॉलिटिशियंस आते थे. It was so far beyond my means, I had never seen thought of going there. राइटर ने हमें क्या बताया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था उस रेस्टोरेंट में जाने की. क्यों? बिकॉज इट्स बियॉन्ड माई लेवल. उनके लेवल से वो बहुत परे था. क्यों? क्योंकि वो अमीर लोग वहां पे जाते थे. I was flattered and I was too young to have learned to say. राइटर ने हमें क्या बताया कि मैं बहुत ज्यादा प्लीज्ड हो गया, है ना, कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया और मैं बहुत इतना यंग था कि मैंने सीख लिया था कि मुझे उस लेडी से, उस वुमन से बात करने के लिए या लंच करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. आई हैड 20 francs to last me to rest of the month and a modest luncheon should not cost more than 15 फ्रांस है बेटा यूरोपियन कंट्री की करेंसी, है ना. तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास मेरी पॉकेट में आई हैड जस्ट 8 फ्रांस. मेरे पास सिर्फ 8 फ्रांस थे और मुझे अपना पूरा मंथ उन्हीं 8 फ्रांस से निकालना था. और एक इतना मॉडेस्ट, नॉट वेरी एक्सपेंसिव. मॉडेस्ट का मतलब होता है कोई एक्सपेंसिव ना होना, है ना. तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं एक मॉडेस्ट लंच कर लूं, एक आम सा लंच कर लूं, तो मेरे पास 15 बच जाएंगे और उन्हीं 15 के साथ मैं अपना पूरा मंथ स्पेंड कर लूंगा. इफ आई कट आउट कॉफी, अगर मैं कॉफी ना लूं, इफ आई वोंट टेक कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, आई कुड मैनेज वेल इनफ. अगर मैं थोड़े टाइम के लिए कॉफी ना पीऊं, कॉफी ना लूं, तो मेरा मंथ अच्छे से निकल जाएगा. यहाँ तक हमें पढ़ के क्या पता चला? दैट ही डिडंट हैव एनफ मनी. उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस गर्ल को मिलने के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करवा पाए. ही हैड जस्ट 8 francs. उनके पास सिर्फ 8 francs ही थे. I answered that. फिर उन्होंने ही खुद को आंसर किया. I would meet my friend by correspondence at Foyt's on Thursday at 12:30. So they decided a place to meet, and it was the place. कौन सी place थी वो? Foyt's restaurant में उन्होंने मिलना था. कहाँ पे? 12:30 में. She was not so young as I expected and in appearance imposing rather than attractive. आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद उन्हें पता चला कि वो उतनी यंग नहीं थी जितना वो सोच रहे थे, है ना. उनकी एज ज्यादा थी. शी वाज इन फैक्ट, शी वाज अ फैक्ट ऑफ वुमन ऑफ 40. वो 40 की थी. शी गेव मी द इंप्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज एंड इवन दैट वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस. उसके ज्यादा जो अच्छा इंप्रेशन दिया टीथ की वजह से, दांत वाइट थे उनके, है ना, लार्ज भी थे, और जो उनका पर्पस था
वो मिलने का उसे थोड़ा ठीक लगा. शी वॉज टॉकेटिव, वो अच्छा बोलती थी, काफी बोलती थी. बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी, लेकिन वो इंटेंडिंग लग रही थी कि वो खुद ही ज्यादा बोलने वाली लेडी थी. आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर, मैं भी प्रिपेयर होके गया था कि हाँ उनसे मिलके लंच करके बातचीत होगी. आई वॉज स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है शॉक्ड हो जाना. आई वॉज स्टार्टेड व्हेन द बिल ऑफ द फेयर वॉज ब्रॉट, पैसे कम थे, सो ही वॉज इन टेंशन, टेंशन थी क्यों कि बिल ज्यादा ना जाए. फॉर द प्राइसेस वर एट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना. अब उन्हें टेंशन थी, किस चीज की टेंशन थी, अबाउट द बिल, बिल की टेंशन थी कि कहीं हम ज्यादा, अगर हमने ज्यादा खा लिया, अगर उस चीज का एक्सपेंसिव ज्यादा हुए तो उन्हें टेंशन हो जाएगी, वो बिल पे नहीं कर पाएंगे. बट शी रीअश्योर्ड मी, लेकिन उस लेडी ने मुझे अश्योर कर दिया. आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर अ लंचन, शी सेड, ठीक है. लेकिन उस लेडी ने क्या बोला कि मैं लंच में कुछ भी नहीं करती, मैं लंच करती ही नहीं. ओ डोंट से दैट, आई आंसर्ड. तो मैंने क्या, उस तो राइटर ने उस लेडी को क्या आंसर किया कि नो, ऐसे मत बोलो, इफ यू आर नॉट हैविंग लंच देन it's okay, but don't say such kind of things, है ना. I never ate more than one thing. I think people can't eat too much nowadays. A little fish, perhaps. I wonder if they have any salmon. और उस गर्ल ने क्या आंसर किया कि वैसे तो मैं लंच नहीं करती, हाँ आजकल के समय में लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी. अगर एक फिश मिल जाए, जिस फिश का नाम सैल्मन, सैल्मन क्या होती है बेटा, a large fish with silver skin, जिसकी स्किन सिल्वर होती है, पिंक, उसका ऊपर फ्लैश जो होता है वो पिंक कलर का होता है. वो क्या कहती है कि हाँ मैं कुछ नहीं खाती, लेकिन if I want salmon fish then I can't deny, अगर मुझे फिश मिल जाए सालमन खाने के लिए तो मैं मना नहीं करूंगी. Well, it was early in the year for the salmon and it was not on the bill of fare, but I asked the waiter if there was any, and he ordered, and he called the waiter, waiter को बुलाया. और जो बिल था, जो मेन्यू होता है ना, हम कहीं भी होटल में या रेस्टोरेंट में के लिए जाते हैं, वो हमें मेन्यू देते हैं, तो उस मेन्यू में सैल्मन फिश नहीं थी. तो फिर क्या हुआ, ही कॉल्ड द वेटर, उन्होंने वेटर को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम इफ देयर वाज एनी सॉर्ट ऑफ फिश, क्या ऐसी फिश मिल जाएगी. यस, अ ब्यूटीफुल सैल्मन had just come in. It was the first that they had. लेकिन उन्हें फिश मिल गई. I ordered it for my, और उन्होंने क्या किया, उस फिश को ऑर्डर कर दिया फॉर माई गेस्ट, और उस गेस्ट के लिए. कौन थी उनकी गेस्ट, वो लेडी का नाम अभी तक हमें पता नहीं, इस राइटर ने नहीं बताया. द राइटर आस्क्ड हर if she would have nothing while it was being cooked. No, she answered. The waiter asked, waiter से पूछा if she would have something while it was being cooked, अगर कुछ और प्लान है खाने का तो आपको मिल जाएगा. No, उसने क्या बोला, no, हम और कुछ नहीं खाएंगे. I never eat more than one thing unless you had a little caviar. I never mind caviar. अब क्या हुआ, फिश मिल चुकी थी, ठीक है. सेकेंडली फिर उस लेडी ने सेम बात बोल दी कि हाँ वैसे तो मैं ज्यादा नहीं खाती, अगर मुझे एक छोटी सी कैरविन मिल जाए तो मैं खा लूंगी. कैरविन क्या होते हैं, द एग्स ऑफ सम टाइप ऑफ फिश, फिश के एग होते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट एज अ सॉल्ट के लिए प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मुझे वो खाने के लिए मिल जाए तो मैं मना नहीं करूंगी. माई हार्ट सैंक अ लिटिल, और वो राइटर डर गया. क्यों डर गया, क्योंकि बातों में तो वो कहती जा रही है कि मैं ज्यादा कुछ खाती नहीं, पहले भी एक बार बोल दिया कि कुछ खाती नहीं, सेकंड टाइम फिर बोल दिया कुछ खाती नहीं, लेकिन बैठी बैठी ने चीजें दो ऑर्डर कर दी. तो राइटर डर गया थोड़ा सा, क्यों, बिकॉज शी डिडंट हैव एनफ मनी, उसके पास इतना पैसा नहीं था. आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड, उसे पता था कि वो फिश के एग्स अफोर्ड नहीं कर सकता. बट आई कुडंट वेरी वेल टेल हर, लेकिन वो उसे बता नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो उसकी गेस्ट है. I told the waiter by all means to bring a caviar, और उन्होंने क्या बोला, वेटर को ऑर्डर दे दिया कि ये चीज, ये फिश के एग जो है ब्रिंग करो, लेके आओ. For myself, I chose the cheapest dish on the menu and that was a mutton chop. ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि राइटर ने हमें क्या बताया, then I decided
टू ब्रिंग चीपेस्ट डिश फॉर माई सेल्फ, अपने आप के लिए मैंने एक बिल्कुल सस्ती सी डिश जो थी ऑर्डर कर दी। क्यों? क्योंकि अगर वो भी कुछ कॉस्टली खाएंगे तो बिल ज्यादा आ जाएगा, है ना, इतने पैसे तो है नहीं। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट। और उस गर्ल ने क्या आंसर किया कि आप अनवाइज हो, आपको फ्लैश नहीं खाना चाहिए, मटन नहीं खाना चाहिए। शी सेड आई डोंट नो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स। और वो गर्ल की कहती कि आप इतना हैवी खाना खाने के बाद काम कैसे करोगे। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, मैं बिल्कुल पेट भरने में विश्वास नहीं करती। लेकिन खुद उसने 2 चीजें ऑलरेडी ऑर्डर कर दी और राइटर के क्या बोल रही थी वो, दैट इट इज नॉट गुड टू ओवर ईट, ओवर खाना खाना अच्छी बात नहीं। देन केम टू द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक। अब क्या हुआ, जो सब खाया खा लिया, अब बात आ गई ड्रिंक कि अब ड्रिंक में क्या लेंगे। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच एंड शी सेड। और फिर उसने गर्ल ने क्या आंसर किया कि मैं ड्रिंक में कुछ नहीं लेती, मैं लंच में ड्रिंक करती ही नहीं, नीदर डू आई आंसर। और राइटर ने भी क्या बोला कि हाँ मैं भी कुछ नहीं लेता ड्रिंक में, एक्सेप्ट व्हाइट वाइन। शी प्रोसीड एज दो आई हैडंट स्पोकन। और फिर उस गर्ल ने क्या आंसर किया, एक्सेप्ट व्हाइट वाइन, हाँ अगर व्हाइट वाइन मिल जाए तो वो ले लूंगी, वैसे मैं कुछ नहीं खाती। देन फ्रेंच व्हाइट वाइन्स आर सो लाइट, है ना, जो फ्रेंच फ्रांस में व्हाइट वाइन्स होती हैं बहुत लाइट होती हैं, दे आर वंडरफुल, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। व्हाट वुड यू लाइक आई आस्क्ड, है ना, उसकी वो गेस्ट है, वो ऐसे तो मना नहीं कर सकते कि हाँ मेरे पास कुछ खाने के लिए है नहीं, ये भी नहीं बता सकते कि मेरे पास पैसे नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि ओके देन व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो आप क्या लेना पसंद करोगे। देन शी गेव ब्राइट स्माइल, उसने बहुत अच्छी स्माइल की। माय डॉक्टर वुड लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैंपेन, है ना। और क्या आंसर किया कि मेरे डॉक्टर ने मुझे पीने के लिए तो मना किया है कि मैं कुछ ड्रिंक तो नहीं करूंगी, हाँ अगर मुझे शैंपेन मिल जाए तो मैं जरूर पी लूंगी। आई फैंसी एंड आई टर्न द ट्रिफल पेल। ट्रिफल मतलब होता है थोड़ा सा, वो फिर थोड़ा सा उसका चेहरा पीला पड़ गया कि ये तो इतने ऑर्डर करते जा रही है, पता नहीं मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा भी, मैं बिल पे कर पाऊंगा भी या नहीं। आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल, उन्होंने हाफ बॉटल ऑर्डर कर दी। आई मेंशन्ड कैजुअली दैट माय डॉक्टर हैज एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शमेन, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे शैंपेन के लिए ही परमिशन दी है। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, तो आप क्या पीने जा रहे हो, वो उसने पूछा। वाटर, पानी, सिर्फ पानी ही पीऊंगा। शी एट द caviar and she ate the salmon. She talked gaily of art and literature, also music. जो भी ऑर्डर आया उसने खा लिया और उसके बाद वो आर्ट और लिटरेचर की बातें करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। बट आई वांटेड व्हाट द बिल वुड कम टू, लेकिन चिंता किसकी हो रही थी, टेंशन। ही वाज थिंकिंग अबाउट द बिल, बिल की टेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि इतने पैसे नहीं पॉकेट में, है ना, अगर ज्यादा आ गया तो इंसल्ट हो जाएगी। I wanted but the will would come to. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. जैसे ही उसका उसने चॉप ऑर्डर किया था, मटन ऑर्डर किया था, जैसे ही वो आया वो बड़ा सीरियस होकर उसकी तरफ देखने लगी। I see that you are in habit of eating a heavy luncheon. I am sure it's a mistake. और उस गर्ल ने क्या क्या बोला उस राइटर को कि आप, मुझे लग रहा है कि आपको हैबिट है ज्यादा खाने की, हैवी खाने की। Why don't you follow my example? आप मेरी एग्जाम्पल क्यों नहीं फॉलो करते? And just eat one thing, बस एक चीज खाओ। I am sure you would feel over so much better for it. आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, तो आपको मेरी एग्जाम्पल फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो खुद रियलिटी क्या है, वो खुद ज्यादा खा रही है, ठीक है, और इसको क्या बोल रही है कि आपको कम खाना चाहिए। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, फिर भी बात बोल दी कि मैं सिर्फ एक ही चीज खाती हूँ। आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद बिल ऑफ फेयर। अब क्या हुआ, वेटर को बिल के लिए बोला गया। शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एयरी जस्टिस, उसने बहुत अजीब सा जेस्चर किया। नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, जस्ट अ बाइट, मैं ज्यादा नहीं खाती, सिर्फ थोड़ा सा ही खाती हूँ। आई नेवर वांट मोर देन दैट, इतने से ज्यादा नहीं खा सकती। एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज फॉर कॉन्वर्सेशन देन एनीथिंग एल्स। इतना भी आज इसीलिए खा लिया क्योंकि आज हमारी कॉन्वर्सेशन है, वैसे मैं इतना यूजुअली इतना नहीं खाती। I couldn't possibly eat anything more unless they had some of these giant asparagus. Asparagus होता है एक ऐसा प्लांट जिसकी स्टेम्स को पकाया जाता है और एज अ वेजिटेबल खाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एस्पेगरस।
फिर क्या हुआ, इतना सारा खा के फिर किसके बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी, एस्पेगरस के बारे में, कि हाँ ज्यादा तो नहीं खाऊंगी, अगर मुझे एस्पेगरस मिल जाए तो वो मैं खा लूंगी। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, लेकिन मुझे बहुत रिपेंट होगा अगर मैं पेरिस से बिना पैरागिस खाए चली जाऊं। माई हार्ट सेड, वो और भी डर गया राइटर। क्यों डर गया, पैसे नहीं इतने, है ना, वो खाती जा रही है, सोच ही नहीं रही कि बिल कौन पे करेगा। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स, मैंने शॉप्स में बहुत देखे हैं एस्पैरागस। आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम, लेकिन जैसे ही वेटर उनके पास लेके आया एस्पैरागस तो उसके माउथ में पानी आ गया देख के। मैडम wants to know if you have any of those giant asparagus, I asked the waiter. वेटर को बुलाया, वेटर को ऑर्डर दिया कि अगर एस्पैगरस मिल जाए तो लेके आओ। I tried with all my might to will him to say no. और वो मन ही मन में क्या सोच रहा था राइटर, कि हे भगवान ये ना कर दे कि ये डिश हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, क्यों, अंदर से डर है ना, कि खाते ही जा रही है। A happy smile spread over his broad priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender, it was marvel. लेकिन उस वेटर ने अपने दांत दिखाते हुए क्या बोला, एक अच्छी सी स्माइल की और क्या बोला, नहीं सर हमारे पास तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, मार्वल, बहुत वंडरफुल एस्पैगरस है खाने के लिए, मैं आपको भी एस्पैगरस ला के देता हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। I am not in the least hungry, my guest sighed. और फिर गेस्ट ने क्या बोला, वैसे मुझे इतनी भूख तो नहीं। If you insist, हाँ अगर आप मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हो, इतना ही फोर्स कर रहे हो तो मैं खा लूंगी, है ना। Aren't you going to have any? और राइटर को क्या पूछ रही है कि आप नहीं खाओगे? No, I never eat asparagus. और राइटर ने क्या बोला, no, मैं कभी नहीं खाता। I know there are people who don't like them. The fact is, you train your palate by all the meat you eat. और palate क्या होता है बेटा, हमारी ability होती है अपने माउथ को किसी चीज, माउथ से किसी चीज को अंदर लेके जाने की, है ना, एबिलिटी होती है, और वो डाइजेशन सिस्टम को सही रखती है। और फिर राइटर ने क्या बोला, वैसे तो उसके मुंह में पानी आ गया देख के कि हाँ मैं खा लूंगा, लेकिन उसने फिर क्या बोला कि हाँ मुझे पता है, मुझे वैसे मैं खाता नहीं, लेकिन बहुत लोग इसे नहीं खाते, क्यों, क्योंकि ये खाने से आपके जो पैलेट है बिल्कुल खराब हो जाते हैं, है ना। वी वेटेड फॉर द एस्पैगरस टू बी कुक्ड, उन्होंने वेट की, जब तक एस्पैगरस पक नहीं जाता तो वेट करते हैं। पैनिक सीज्ड मी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। इट वाज नॉट अ क्वेश्चन now how much money I should have left over the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. Mortifying का मतलब होता है making somebody feel ashamed, दूसरे को शर्म फील कर देना। तो दो ऐसे, तो अब क्या हुआ, उन्होंने वेट की एस्पैगरस के लिए, है ना। अब टेंशन किस बात की हो गई थी, अब टेंशन इस बात की नहीं थी कि हाँ पॉकेट में कितने पैसे हैं, अब टेंशन इस बात की थी कि अगर बिल ज्यादा आ गया तो मुझे कहीं अपने गेस्ट को शर्मिंदगी ना फील करनी पड़ जाए, मुझे कहीं अपने गेस्ट से पैसे ना मांगने पड़ जाए, ठीक है। I couldn't bring myself to do that. मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने ही गेस्ट से पैसे नहीं मांग सकता। I knew exactly how much I had. अब मुझे अच्छे से पता था मेरे पास कितने पैसे हैं। If the bill came to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked. उसने प्लान बना लिया, he made a plan, and वो क्या सोच रहा था, if they will ask about the bill, I will keep my hand in my pocket and I will say that it is wrong. Okay? उसने प्लान बना लिया कि अगर बिल ज्यादा आ गया, मेरे पास पैसे कम है, अगर बिल ज्यादा आ गया तो क्या करूंगा, एक ड्रामा करूंगा कि मेरा पर्स तो चोरी हो गया, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, है ना, मेरा पर्स वॉलेट किसी ने चुरा लिया। I, of course, it would be awkward if she hadn't money enough either to pay the bill
और कितना awkward लगेगा, है ना, पैसे ना होना. The only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. उसने फिर प्लान बनाया, ऐसे करूंगा कि अपनी वॉच जो है इसे यहाँ पे छोड़ जाऊंगा and I will come back and I will pay later and take the watch. पैसे दे जाऊंगा और अपनी वॉच ले जाऊंगा. The asparagus appeared. अब उनकी वो डिश आ चुकी थी. They were enormous, sculptured and appetizing, है ना, बहुत टेस्टी थी, जूसी लग रही थी. I watched the woman thrust them down her throat in large mouthfuls. In my polite way, I discoursed on the condition of the drama in the Balkans. अब क्या हुआ, वो वुमन इतना ज्यादा माउथफुल अपना मुंह भर भर के खा रही थी कि उसके थ्रोट के नीचे जाता हुआ स्पैगस भी उसे दिख रहा था, है ना, इतना ऐसे खा रही थी. और उसकी जो लॉन्ग स्पीच थी, वो लॉन्ग डिस्कोर्स का मतलब होता है लॉन्ग स्पीच, उसका तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था. एट लास्ट शी फिनिश्ड, ठीक है, खा लिया, स्पैगस भी वो खा गई. कॉफी, आई सेड. फिर उसकी ड्यूटी है ना, उसको लंच के लिए लेके आया वो. फिर वो बोलता है कॉफी, क्या कॉफी ले लूं? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, शी आंसर्ड. हाँ, या तो आइसक्रीम लूंगी या कॉफी लूंगी. आई वॉज पास्ट टेयरिंग नाउ. उसने क्या बोला कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही थी. आई गेव द फॉलोइंग ऑर्डर, कॉफी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड अ कॉफी फॉर बोथ. खुद के लिए आइसक्रीम मंगवा, कॉफी अपने लिए मंगवा ली, उसके लिए आइसक्रीम भी मंगवा दी और कॉफी भी मंगवा दी. यू नो, देयर इज वन थिंग आई थॉरली बिलीव इन. उसने क्या बोला, तुम्हें पता है कि मुझे एक ही चीज पे विश्वास है. शी सेड. शी एट द आइसक्रीम. वो आइसक्रीम खाती है. वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन वुड ईट अ लिटिल मोर. जब भी हम कोई खाना खा रहे हैं तो हमें ऐसे लगना चाहिए कि हमेशा हमें थोड़ी सी भूख रखनी चाहिए, हमारे पेट में स्पेस होनी चाहिए खाने के लिए. Are you still hungry? I asked. और राइटर ने मुझसे क्या बोला कि तुम अभी भी भूखी हो, अभी भी तुम्हें भूख लगी है. Oh no, I'm not hungry. You see, I don't eat lunch. मैं इतना नहीं खा सकती, मैं इतनी भूखी भी नहीं. I have a cup of coffee in the morning and then dinner. I never eat more than one thing for lunch. एक चीज से ज्यादा नहीं खा सकती मैं. I was speaking for you. Oh, I see. राइटर ने क्या बोला, हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है कि आप कितना खाती हो कितना नहीं खाती. Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us and bearing a large basket full of huge peaches. है ना, अब क्या हुआ कि एक peaches लेके बड़ी basket लेके waiter फिर आ गया. They had the blush of an innocent girl. They had the rich tone of the Italian landscape, but surely peaches were not in season then. Lord knew what they cost. I knew too. A little later, for my guest, going on with her conversation, absent mindedly took one. अब क्या हुआ, जो ऑथर था, जो वेटर था, वो पीचेस लेके आ गया. पीचेस का सीजन भी नहीं था तो बहुत कॉस्टली थे. तो उन्होंने सोचा कि मुझे अच्छे से पता था ये कितने कॉस्टली है. You see, you have filled your stomach with lot of meat, my one miserable little chore, and you can't eat more anymore. तो उसको क्या बोला कि आपको पता है कि आपका स्टमक फिल हो चुका है मीट से, आप बहुत खा चुके हो. बट आई हैव जस्ट अ स्नैक, आई शैल एंजॉय अ पीच. कि अब मुझे पीच को भी एंजॉय करना चाहिए. द बिल केम, बिल आ गया, एंड आई पेड इट, पे भी कर दिया. आई फाउंड दैट आई हैड ओनली एनफ फॉर अ quiet indeed tip. Her eyes rested for an instant on the three fences. I left for the waiter, and I knew that she thought me mean. अब क्या हुआ, उसने टिप भी दे दी, थ्री फ्रांसिस की टिप भी दे दी ताकि वो ऐसे ना सोचे कि कितना मीन है. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me, not a penny in my pocket. जितने भी पैसे थे सारे खर्च हो गए, कुछ भी नहीं बचा पॉकेट में. Follow my example, she said, as we shook hands. जैसे ही हमने बाहर मिलके हाथ मिलाए, उसने फिर क्या बोला, you should follow my example. मेरी एग्जाम्पल को फॉलो करो. Never eat more than one thing. एक चीज से ज्यादा ना खाओ, खुद इतना खा लिया है ना. I will do better than that, I resorted. हाँ मैं इससे अच्छा कर लूंगा. I will leave nothing. आज मैं खाने के लिए कुछ, आज मैं डिनर में कुछ भी नहीं खाऊंगा. Humorist, she cried gaily and jumping into a cab. कैब में बैठ गई और क्या बोलती गई, तुम कितने मजाकिये हो. You are quite a humorist. आप बहुत मजाक करते हो. But I have had my revenge.
और फिर जब ऑथर, ये सारी पास्ट की बात थी, अब जब ऑथर ने बोला कि वो मेरे सामने बैठी थी, कि जब मैं उसे एक मूवी हॉल में मिला तो मैंने अपना बदला ले लिया। आई एम नॉट अ विंडिक्टिव मैन, बट व्हेन द गॉड्स पनिश समवन इट इज पार्डनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट। उन्होंने क्या बोला कि जब गॉड किसी को पनिश करती हैं, किसी को भी, तो हमें उस रिजल्ट को, उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए विद कॉम्प्लीमेंसी, विद कॉम्प्लेसेंसी। टुडे शी वेज 21 स्टोन। अब क्या हुआ कि जो वो लेडी थी, जो उन्हें मिल चुकी थी, अब गॉड ने उसको उसकी पनिशमेंट दे दी थी। पनिशमेंट कैसे दे दी थी? कॉम्प्लीमेंसी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन विद योरसेल्फ। अब उसे देख के बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही थी। और जो ये स्टोन है, स्टोन एक यूनिट है वेट को मेजर करने की। अब उस लेडी का वेट जो था 21 स्टोन हो चुका था। इतना खा खा के वो कितनी ज्यादा मोटी हो चुकी थी, ओवर ईटिंग की वजह से गॉड ने उसको पनिशमेंट दे दी थी। और ये देख के राइटर को बहुत खुशी फील हो रही थी कि एटलीस्ट गॉड ने अपना बदला इससे ले लिया, कि कैसे मेरे पास पैसे नहीं थे फिर भी इतने, इसने एक ही चीज बोल रही थी बार बार, मैं इतना नहीं खाती, इतना नहीं खाती, लेकिन फिर भी वो कितना ज्यादा खा रही थी। और कैसे उसने राइटर को मजबूर कर दिया। वो सोच रहा था कि हाँ मेरे पास इतने ही बिल है, इतना ही है पैसा, लेकिन फिर भी उसने एडजस्ट किया, उसके लिए पूरे मंथ के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी उसने अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट की। लेकिन गेस्ट ने एक बार भी नहीं सोचा कि इसके पास इतने पैसे हैं ये नहीं है। बात बेटा पैसों की भी नहीं होती, एटलीस्ट अगर पैसे उसके थे तो पेट तो उसका खुद का था, उसने खुद सोचना था कि मुझे कितना खाना चाहिए। ओवर ईटिंग तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। वो क्या कर रही थी, एक के बाद एक चीज ऑर्डर हो रही थी, और उसकी वजह से उसकी इतनी ओवर ईटिंग चल रही थी कि उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका। दिस इज द होल समरी। ओके, समझ आया बेटा सभी को? समझ आया बेटा सभी को? गिव मी आंसर। Ma'am, yes. 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 आंसर मिला आपको? Yes. समझ गए? Ma'am, yes. Ma'am, Yes. समझ आया? ma'am, आ गया समझ में. मैम आ गया समझ। ओके बेटा, पहले Ma'am, आ गया समझ में. होने Ma'am, आ वाली गया. अटेंडेंस बोलो जैस्मिन। मैम आ गया समझ में। प्रेजेंट मैम। ओके, जैस्मिन अटेंडेंस हो गई। नेक्स्ट अमनप्रीत कौर। प्रेजेंट मैम। ओके, नेक्स्ट है महकदीप कौर। Yes मैम। अटेंडेंस हैज बीन मार्क्ड। आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे कल। चैप्टर के शेयर किए जाएंगे विद कीवर्ड्स। तो सभी ने नोटबुक्स को मेंटेन करके रखना है। Okay. ओके बेटा, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग। ओके बेटा। हमारी अटेंडेंस नहीं लगाई है आपने। कैसे बेटा? हमारी भी नहीं लगी। हमारी भी नहीं लगी. सभी की लग गई। हमारी भी नहीं लगी। सभी बच्चों हमारी भी नहीं लगी. की हुई है, ऐसे हमारी भी नहीं लग गई लगी. आपकी अटेंडेंस। ओके बेटा। हमारी भी नहीं लगी. हमारी अटेंडेंस भी हमारी भी नहीं लगी. बोल क्या डाटा काम क्या? है ना हमारी भी नहीं लगी। मैम, हमारी भी नहीं लगी. लग गई बेटा, सभी की अटेंडेंस लग चुकी है। सभी ने अपनी आईडी मेंशन की हुई थी ना, बस उसको देख के सबकी अटेंडेंस लग जाएगी। क्लियर?
मैम ओके। मैम ओके। ओके बेटा।